Hello students, today in this video I will explain you remaining questions of exercise 5th E. All of you see question number 12. 12th question. It takes 1 whole 3/4 meter cloth to make a pair of trousers. What is given in the question? In order to make a pair of trousers, how much cloth is required? 1 whole 3/4 meter. So first of all you will write cloth required to make a pair of trouser is equal to cloth required to make a pair of trouser is given in the question 1 whole 3/4 meter. When you will change this mixed fraction into improper, you will get 4 1 4, 4 plus 3, 7/4 meter. So this much cloth is required to make a pair of trouser. आगे क्या बोला है? If the cloth needed to make 10 pair of trousers is cut out from 20 meter of cloth. क्या बोला इन्होंने? 10 pair of trousers बनानी है, तो आप पहले आप फाइंड करेंगे cloth required to make 10 pairs of trouser is equal to this much cloth is required for 1 pair of trouser. और आपको कितने trousers बनानी है? 10. So 10 तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा trousers बनाने के लिए ज़्यादा कपड़ा चाहिए. ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई विद 1 वैल्यू. एक पेयर ऑफ ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा चाहिए? 7/4. तो टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स वी हैव टू मेक 10 और एक ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा चाहिए? 7/4. दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. 7 into 5, 35/2 meter. So this much cloth we needed for making 10 trousers. Now this cloth we had cut from the 20 meter length of cloth. 10 trousers बनाने के लिए ये वाला कपड़ा आपने कहाँ से कट किया है? 20 मीटर क्लोथ में से. So what you have to write? Total length of cloth. Total length of cloth is 20 मीटर. इसमें से आपने ये 10 ट्राउजर्स का कपड़ा क्या करा है? कट किया है. नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ मच लेंथ ऑफ क्लोथ इज लेफ्ट. तो आपको क्या लिखना है? क्लोथ लेफ्ट, बचा हुआ कपड़ा कितना है? टोटल क्लोथ कितना है? 20 मीटर. उसमें से आपने माइनस करना है जितना कपड़ा आपने निकाल लिया है. हाउ मच मीटर? 35/2 मीटर. ऑन सब्ट्रैक्टिंग दीज टू एलसीएम लेंगे. 1 2 जा 2, 2 into 20 40, minus 2 1 जा 2, 1 into 35 35. इनको माइनस करेंगे then we will get 5/2 meter. So this much meter of cloth is left after cutting the cloth for 10 trousers. So like this you have to do question number 12. Now all of you see question number 14. 14th question is, an examination was held into 2 parts. Of the 630 examinees. Examinees means those persons who are giving the exam. So total number of examinees are 630. So first of all we write total examinee 630. So out of these 630 examinees, 3/10 appeared in the first part. So आप लिखेंगे examinees appeared in first part. How many examinees appeared in first part? 3/10. 3/10. These are not the number of person. This is the fraction. तो फ्रैक्शन दिया है तो आपको मल्टीप्लाई लगाकर क्या करना है? 630 भी करना है. 0 and 0 will get cancelled. So we will get 189 number of persons appeared in the first exam.
फ्रॉम द 630%, टोटल 630 थे जिसमें से 189 किस में आए हैं, फर्स्ट पार्ट का एग्जाम देने आए हैं. आफ्टर दैट एंड 2/5 appeared in only second part. So examinees appeared in second part. सेकेंड पार्ट वाला एग्जाम कितने एग्जामिनीज ने दिया है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 2/15. 2/15. सो दिस इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन, नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है, तो मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा. टोटल वैल्यू इज 630. नाउ वी विल कैंसिल दिस टू. 15 1 जा 15 4 जा 60, रिमाइंडर 3, 15 2 जा 30. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस टू. 42 2 जा 84. So 84 examinees had given second exam. Now the rest appeared in both the parts. इन्होंने क्या बोला है, बचे हुए दोनों एग्जाम्स देने आए. This much examinees had given first, this much examinees had given second. अब आप निकालेंगे रिमेनिंग एग्जामिनीज कितने हैं. रिमेनिंग एग्जामिनी, for remaining examinee what you have to do, total number of examinees are 630. From this we will remove those who had given first exam 189 as well as that number of persons who had given second part. ये भी क्या करेंगे, remove कर देंगे. Now 630 will be as it is. माइनस एंड माइनस इज प्लस, तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे, बट साइन आपको इन दोनों में से बड़े वाले का लगाना है, विच इज ग्रेटर. 189 इज ग्रेटर इन दोनों में, तो 189 का साइन है माइनस, और इन दोनों को आप माइनस माइनस प्लस करेंगे. 9 + 4 30, 8 + 8 16 and 1 72. 273 को माइनस करेंगे. ऑन सबट्रैक्टिंग इट वी विल गेट 10 - 3 will be 7, 2, 12 - 7 5, here it will be 5, 5 - 2 will be 3. So 357 examinees are remaining and these remaining person had given both exam. ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ examinee who had given both पार्ट आर 357. जिन्होंने दोनों एग्जाम दिए हैं वो कौन से हैं, वो रिमेनिंग वाले हैं. क्वेश्चन में बोला है, इसलिए हमने 357 लिया. नाउ फाइंड द नंबर ऑफ एग्जामिनी हु अपीयर्ड इन बोथ पार्ट. आपको यही फाइंड करना है कितने एग्जामिनीज हैं जो दोनों एग्जाम देने आए थे, वो हैं 357. सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 14. नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 17. A container of milk is 4/5 full. मिल्क का कंटेनर 4/5 भरा हुआ है. When 10 लीटर ऑफ मिल्क इज poured into it, जब उसमें हमने 10 लीटर मिल्क और डाल दिया, पहले से कितना है उसमें 4/5 तो भरा हुआ है, अब उसमें 10 लीटर मिल्क और डाल दिया है हमने, तो उसका जो फ्रैक्शन बन गया है, द कंटेनर बिकम 9/10 full. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेंगे लेट द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज X लीटर. मान लेते हैं कंटेनर के अंदर कितना मिल्क आ रहा है, X लीटर मिल्क टोटल आएगा. अब फर्स्ट लाइन में बोला है ए कंटेनर इज ऑफ मिल्क इज 4/5 फुल, तो आप क्या लिखेंगे, कंटेनर फिल्ड विद मिल्क. यू हैव टू फाइंड कंटेनर कितना भरा हुआ है मिल्क से. क्वेश्चन में बोला है 4/5 है फिल, बट दिस 4/5 इज ए फ्रैक्शन, ये कोई लीटर में नहीं दिया, दिस इज द फ्रैक्शन. तो आपको मल्टीप्लाई में टोटल कंटेनर की कैपेसिटी भी लेनी है. तो 4/5 × x, तो ये बन जाएगा 4x/5. तो इतना कंटेनर जो है वो क्या है, भरा हुआ है किससे, मिल्क से. अब आगे क्या बोला है, When 10 लीटर ऑफ मिल्क इज poured into it, जब हमने 10 लीटर मिल्क डाला इसमें, तो आप लिखेंगे when
10 liter milk is poured into it, then milk in the container जो है, मिल्क इन द कंटेनर जो है वो कौन सा मिल्क है? पहले जो था मिल्क वो भी है, प्लस 10 लीटर और आ गया है, यानी 4x/5 तो पहले था जो पहले से भरा हुआ था उसमें, प्लस 10 लीटर हमने और डाल दिया, तो ये बन जाएगा 4x/5 प्लस 10 लीटर। तो जब हमने 10 लीटर मिल्क डाल दिया है तो हमारे अकॉर्डिंग बन रहा है 4x/5 प्लस 10, बट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है जब हमने 10 लीटर मिल्क पोर करा द कंटेनर बिकम 9/10 फुल, तो कंटेनर जो है वो कितना भर गया? 9/10 भर गया। हमारे अकॉर्डिंग कंटेनर कितना भरा? 4x/5 प्लस 10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना भरा? क्वेश्चन में बोला है 9/10, तो आपको वो लेफ्ट हैंड पे लेना है, राइट हैंड पे हमारा वाला आंसर, लेफ्ट हैंड पे क्वेश्चन वाला आंसर। क्वेश्चन में कितना भरा है? 9/10, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है? 9/10 लेना है। ये 9/10 तो फ्रैक्शन है, 9/10 किसका? 9/10 कंटेनर का। क्वेश्चन में बोला है कंटेनर का 9/10 भरा है, तो कंटेनर टोटल कितना है? कंटेनर टोटल कैपेसिटी है x, तो अभी कितना फिल हो गया है? 9x/10 फिल हो गया है, ऐसा क्वेश्चन मिला है। और इक्वल टू के बाद हमारा वाला आंसर है, हमने जो फाइंड करा है 4x/5 प्लस 10, दोनों चीज़ सेम है। ये वो है जो कंटेनर में मिल्क अब फिल हुआ है, और ये भी वही चीज़ है जो कंटेनर में मिल्क अब फिल हुआ है। ये हमने खुद फाइंड करा है और ये 9/10 क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो दोनों आपस में क्या है? ये इक्वल है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। नाउ 9 × x 9x/10, 4x/5 प्लस 10, दोनों में x आ रहे हैं, तो अब आपको करना क्या है? ये इक्वल टू की राइट साइड से हटाकर लेफ्ट पे ले आएंगे आप, तो ये बन जाएगा 9x/10, ये इधर आ जाएगा तो लेफ्ट हैंड पे प्लस साइन है, तो जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये कोई भी नंबर राइट हैंड पे अगर प्लस का होता है तो लेफ्ट हैंड पे आगे क्या बन जाता है? माइनस का। इक्वल में क्या रह जाएगा? 10 बन जाएगा। नाउ वी विल टेक एलसीएम, आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10, 10 1 जा 10, 1 × 9x 9x माइनस 5 2 जा 10, 2 × 4x 8x इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? इन नेक्स्ट स्टेप 9x माइनस 10x करेंगे तो ये आ जाएगा 1x/10 इज इक्वल टू 10। दिस 10 वी विल ब्रिंग हेयर, तो 1x इज इक्वल टू 10 × 10। क्यों मल्टीप्लाई करा? वाई वी हैव डन मल्टीप्लाई? क्योंकि ये जो 10 है अपॉन के नीचे लिखा है, अपॉन मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड वाला नंबर उधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 1x इज इक्वल टू 100, और 1x कुछ नहीं होता है, 1x को हम x ही बोलते हैं। 1 × x करेंगे तो 1 × x करके आंसर क्या आएगा? x, तो x का आंसर 100। नाउ व्हाट इज x? x आपने यहाँ माना था, क्या माना था? कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो अब आप लिखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ कंटेनर जो है वो क्या है? कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इक्वल 100 लीटर। तो कंटेनर की कैपेसिटी कितनी आ गई है? 100 लीटर आ गई है। So like this we have to do question number 17. Now all of you see question number 20. 20 question. Mr. Boss gave 2/3 of his money to his wife. क्या बोला इन्होंने? मिस्टर बॉस ने 2/3 मनी अपनी वाइफ को दे दिया। रुपीज़ में नहीं बताया है कितनी मनी दी है, फ्रैक्शन में बताया है। फाइंड क्या करना है? लास्ट सेंटेंस में देखेंगे हाउ मच मनी डिड मिस्टर बॉस हैव। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेट, मान लेंगे मिस्टर बॉस हैव एक्स रुपीज़। मान लेते हैं मिस्टर बॉस के पास कितने रुपीज़ हैं? एक्स रुपीज़ है। अब उन्होंने वाइफ को कितने दिए हैं? मिस्टर बॉस गेव 2/3 ऑफ हिज मनी टू वाइफ। सो व्हाट यू हैव टू राइट? मनी गिवन टू वाइफ, मनी गिवन टू वाइफ। हाउ मच मनी ही हैड गिवन टू वाइफ? 2/3। ये तो फ्रैक्शन है,
तो 2/3 किस में से दिया है उन्होंने? अपने पैसों में से दिया है। उनके पास कितने रुपीस थे? x, तो 2/3 मल्टीप्लाई x, यानी 2x/3 रुपीज़ उन्होंने अपनी वाइफ को दिए हैं। नाउ हिज वाइफ गेव 3/4 ऑफ हर मनी टू डॉटर। नाउ व्हाट यू हैव टू राइट? मनी गिवन टू डॉटर। डॉटर मीन्स बेटी को। बेटी को पैसे किसने दिए हैं? वाइफ ने दिए हैं। वाइफ मीन्स जो डॉटर है उसको किसने मनी दिया है? उसकी मदर ने दिया है। तो कितने मनी दी है? 3/4। ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। तो आपको क्या लिखना है? 3/4 मल्टीप्लाई में क्या लेंगे? जब ये फ्रैक्शन दिया तो मल्टीप्लाई लेना है। ये मनी किसने दी है डॉटर को? ये मनी दी है वाइफ ने। तो वाइफ ने अपने वाले पैसों में से दी है। तो वाइफ के पैसे कितने थे? 2x/3। तो मल्टीप्लाई में आपको क्या लेना है? 2x/3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 3 1 जा, ये 3 भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 तो ये आ जाएगा 1x/2। तो इतनी मनी डॉटर को दी है। किसने दी है? वाइफ ने। मिस्टर बॉस की वाइफ ने दी है। नाउ 2/3 ऑफ द डॉटर मनी वाज स्टोलन। नाउ व्हाट यू हैव टू राइट? मनी स्टोलन। मनी स्टोलन। स्टोलन मीन्स खो गई। कितनी मनी खो गई है डॉटर की? 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2/3। ये भी फ्रैक्शन दिया है, रुपीस में तो दिया नहीं। तो 2/3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये मनी किसकी खोई है? 2/3। ये मनी डॉटर की खोई है। तो किस में से खोए हैं ये पैसे? ये पैसे उस पैसों में से खोए हैं जो उस डॉटर के पास थे। डॉटर के पास कितनी मनी थी? 1x/2। तो इस मनी में से इतनी मनी क्या हो गई? खो गई है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लेना है? ये वही वाली मनी लेनी है जो उस डॉटर के पास थी। 1x/2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1x/3। तो हमने यहाँ क्या फाइंड करा है? मनी स्टोलन। कितनी मनी खो चुकी है या चोरी हो गई है? 1x/3 मनी चोरी हो गई है। किसकी मनी? डॉटर की मनी। पहले उसके पास कितने थे? इतने थे। अब इतने रुपीस खो गए हैं। तो अब आप निकालोगे मनी लेफ्ट। उसके पास बची कितनी? मनी लेफ्ट। किसकी मनी लेफ्ट? मनी लेफ्ट विद डॉटर। डॉटर के पास कितनी मनी बची? पहले उसके पास कितनी मनी थी? 1x/2 मनी डॉटर के पास थी, जिसमें से हम माइनस कर देंगे जो पैसे चोरी हो गए। कितने चोरी हो गए? 1x/3। तो इनको माइनस करने के लिए आप एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3x, माइनस 3 2 जा 6, 2 × 1x 2x। ऑन सब्ट्रैक्टिंग दीज टू, इनको माइनस करके आएगा 1x/6। तो व्हाट वी हैव फाइंड? मनी लेफ्ट निकाल ली डॉटर की 1x/6। ये हमने खुद निकाली। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोलेंगे, क्वेश्चन में बोला है शी वॉज लेफ्ट विथ 30,000 रुपीज़। ये शी कौन है? ये डॉटर है जिसके पैसे चोरी हो गए थे, जिसकी अभी बात चल रही थी सेंटेंस में। तो डॉटर की मनी इतनी थी, उसके इतने पैसे चोरी हो गए, तो बचे कितने? हमारे हिसाब से इतने बचे। और क्वेश्चन में कह रहा है डॉटर के पास कितने बचे? 30,000। तो वो जो बचे हुए पैसे हैं वो आप लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे, मनी लेफ्ट के नीचे। कितने मनी लेफ्ट है? 30,000। इधर भी क्या लिखेंगे? 30,000। ना ये जो डिवाइड में 6 है ये इधर आ जाएगा, तो डिवाइड वाला 6 इधर आके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई 6। तो आप क्या लिखेंगे? 30,000 मल्टीप्लाई 6। और इक्वल टू में क्या रह जाएगा? इक्वल टू में 6 हट गया तो क्या बचा? 1x। और 1x क्या होता है? x ही होता है। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़। इसकी वैल्यू x। एंड व्हाट इज x? ये x क्या है? x इज मनी मिस्टर बॉस है। मिस्टर बॉस के पास जो मनी थी वो x थी। तो ये x किसका आंसर आया है? मिस्टर बॉस का आया है। इन्होंने पूछा था हाउ मच मनी डिड मिस्टर बॉस है, तो कितनी मनी है उनके पास? मिस्टर बॉस के पास 1,80,000 रुपीज़ है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 20।
So now this exercise is over. You all have to finish this exercise in your fair notebook.